Good morning, everyone. In our previous session, that is yesterday evening, we have discussed Raoult's law, which explains the vapor pressure of liquid solution, right? Now, when we were studying Raoult's law at that time only, you must have noticed that there is something common in Raoult's law as well as Henry's law. नहीं कुछ नोटिस किया आपने राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही थी आपको मोल फ्रैक्शन so our today's topic is that only we are going to discuss Raoult's law as a special case of Henry's law. Raoult's law as a special case of Henry's law. राउल्ट्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या था partial pressure or sorry vapor pressure of a solution or partial pressure of each volatile component is directly proportional to its mole fraction in the solution. Partial pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction in the solution, right? अब इसमें एक ऐसा सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए that in the liquid solution one of the component is volatile to such an extent that it exists in the gaseous state. एक कंपोनेंट इतना हाईली वोलाटाइल है that its volatility is comparable with that of gas. इतना ज्यादा वोलाटाइल है कि आप उसकी वोलाटिलिटी को गैस से कंपेयर कर सकते हो. गैसेस तो हाईली वोलाटाइल होते हैं, आपको पता है, इसलिए तो वो गैसेस स्टेट में है. As they are volatile, that's why they are in the gaseous state. So what you have to consider, one component to be volatile to such an extent that you can compare its volatility with that of gas. आप गैस से उसकी volatility compare कर सको. Then in that case we know that the solubility is given in terms of बोलो Henry's law, P is equal to KH multiplied by mole fraction, right? इसका मतलब ये हुआ that Raoult's law will become special case of Henry's law. Raoult's law will become special case of Henry's law when one of the component is highly volatile such that its volatility is comparable as that of gas and their vapor pressure of that pure component will be equal to KH. ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, 1 मार्क का ही पूछा जाता है, that when does Raoult's law becomes a special case of Henry's law. तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, Raoult's law becomes special case of Henry's law if one of the component present in the solution is highly volatile to such an extent that its volatility is comparable with that of gas. There Raoult's law becomes special case of Henry's law and the P naught becomes equal to KH. ठीक है, बाकी तो दोनों सेम ही है, दोनों ही कंडीशन में यू कैन सी दैट P is directly proportional to mole fraction, right? So Raoult's law becomes special case of Henry's law
if one of its component is highly volatile comparable to volatility of gas. Raoult's law becomes special case of Henry's law if one of its component is highly volatile. That means the volatility is comparable to that of gas. And vapor pressure of pure component that is P naught becomes equal to Henry's law constant. That is KH. आ रहा है समझ में प्रथम? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछा जाता है. व्हेन डज राउल्ट्स लॉ बिकम्स स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ? तो आप इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दोगे? पहले तो दोनों का मैथमेटिकल फॉर्म लिख दो. दैट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ P is equal to P naught multiplied by mole fraction, and according to Henry's law P is equal to KH multiplied by mole fraction. फिर थोड़ा सा आप डिस्कस कर सकते हो दैट वी कैन सी इन बोथ द केसेस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. उसके बाद ये आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, दैट राउल्ट्स लॉ विल बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ if one component present in the solution is highly volatile such that volatility is comparable with that of gas, and there P naught will become equal to KH. इजी है ना? चलिए दूसरा जो इसके बाद का जो टॉपिक है ये भी बहुत सिंपल है. वी आर गोइंग टू डिस्कस वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन. इसमें भी हम राउल्ट्स लॉ ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें बस आपको एक छोटी सी चीज समझनी है. छोटी सी चीज ये समझनी है दैट हियर इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन द लिक्विड इज द वोलेटाइल कंपोनेंट. सॉल्वेंट लिक्विड जो है वो वोलेटाइल कंपोनेंट है. बट डू यू थिंक दैट द सॉलिड विल बी वोलेटाइल इन इट? सॉलिड वोलेटाइल होगा इसमें? क्या आयोनिक सॉलिड्स जो हैं वोलेटाइल होते हैं? या इवन नॉन आयोनिक सॉलिड्स भी ले लो, या तो सब्लिमेबल होते हैं, वोलेटाइल तो होते नहीं है ऐसे. और सब्लिमेबल कंपाउंड्स में the once you form the solution they will lose the property of sublimeability. एक बार आपने सॉल्यूशन फॉर्म कर दिया then you cannot talk about their conversion into vapor state directly. सब्लिमेशन जो है वो सॉलिड टू गैसेस स्टेट में ही होता है डायरेक्ट, राइट? और ऐसे तो सॉलिड्स नॉन वोलेटाइल ही होते हैं, मोस्टली दे आर नॉन वोलेटाइल. मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस सॉलिड्स कैसे होते हैं? नॉन वोलेटाइल होते हैं. तो ये हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल. सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल है. तो व्हाट डू यू थिंक इन दिस केस what should be the partial pressure over the solution, or what should be the vapor pressure of the solution? Vapor pressure of the solution. solution का वेपर प्रेशर इस केस में क्या होना चाहिए? नहीं, जीरो नहीं होगा. From the liquid part, here the vapor pressure of the solution will be directly proportional to mole fraction of the solvent in the solution. यहाँ पे क्या होगा? वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ only the solvent present in the solution.
क्योंकि सॉल्यूट के तो वेपर बन ही नहीं रहे, राइट। सो solid component being non-volatile in the solution will not contribute to vapor pressure of solution, right। सॉलिड कंपोनेंट जो है वो नॉन वोलेटाइल है एंड इट विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सो इस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is given as P is equal to P1 naught multiplied by mole fraction of 1, जिसमें 1 हमने क्या लिया है, what is 1 here, कंपोनेंट 1 which is solvent, हाँ लिक्विड कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, राइट। चलिए we have talked about only the liquid component here। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जिसमें स्टेटमेंट डाल सकते हो that vapor pressure of the solution is same as partial pressure due to the liquid component। लिक्विड कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा that is only the vapor pressure of the entire solution, क्योंकि सॉलिड या सॉल्यूट की तरफ से जो है वेपर कंट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा, इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, यहां पे मैं रखता हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, चलेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और यहां रखता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। So you will be getting graph like this, ऐसा ग्राफ मिलेगा, राइट, है ना, स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। इजी है, चलिए। सो दो टॉपिक आपके छोटे छोटे कवर हुए। पहला है राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन इज अ कॉन्सेप्चुअल पार्ट, इसमें मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं, पहले भी नहीं थी। अगर ये टॉपिक मैं आपको नहीं पढ़ाता तो भी अंडरस्टूड है कि जिसके वेपर का कंट्रीब्यूशन नहीं है वहां पे द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट ड्यू टू दैट विल बी 0। आपने क्या लिखा था कल, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 लिखा था ना, तो P2 अगर 0 हो जाएगा तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द P1, वही मैंने लिखा है, सिंपल है। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसको आप नोट कर लीजिए। चलो, आफ्टर राउल्ट्स लॉ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर आई विल से आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस अगर मैं कहूं आपसे, द टॉपिक इज so important that the concept covered under this particular part has the questions coming in the interviews which the candidates face after clearing post graduations। ये पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा। आई वाज आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट in one of the company
which actually used to hire only the top 10 students of the universities in Gujarat. तो I will be discussing कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था और क्वेश्चन क्या था, इसी पार्ट से आता है। इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर मैं जेईई और नीट की भी बात करूं तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं मतलब काफ़ी ट्विस्टेड से और डेफिनेटली आते ही हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से क्वेश्चंस रहता ही। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है। आइडियल सॉल्यूशन इज नथिंग दोज सॉल्यूशंस व्हिच ओबेज राउल्स लॉ एट एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसा सॉल्यूशन जो हर एक कंसंट्रेशन पे राउल्स लॉ ओबे करता हो, राउल्स लॉ को फॉलो करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन, है ना। अ सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्स लॉ एट द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। आइडियल सॉल्यूशन का क्या मतलब है? अ सॉल्यूशन व्हिच ओबेज Raoult's law at entire range of concentration. A solution which obeys Raoult's law at entire range of concentration, that is called ideal solution. याद रखिएगा, entire ideal solution has a very important characteristic as it has enthalpy of mixing 0 and volume of mixing 0. एक आइडियल सॉल्यूशन में एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? एग्जैक्टली 0. एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग का मतलब हुआ that when you mix the two components, no energy change will be taking place. दो कंपोनेंट्स को मिक्स करने पे कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होगी, ना एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा ना एनर्जी रिलीज होगी. There will be no net change in energy taking place. That is why we write enthalpy of mixing 0. And volume of mixing 0 का मतलब हुआ there will be no increase or decrease in the volume. The total volume will remain equal to the sum of the two volumes in which you have mixed the liquid components, right? तो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन एंड राइट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. तो आइडियल सॉल्यूशन तो पता चल गया which obeys Raoult's law at entire range of concentration is ideal solution. And what are the important characteristics? So enthalpy of mixing and volume of mixing of this is 0. ठीक है. अब थोड़ी देर के लिए ये सोचते हैं कि आखिर क्या ऐसा होता है इसमें जिसकी वजह से एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग 0 है. मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसा क्या अवेलेबल है इनमें जिसकी वजह से ये आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते है ना? नहीं. इसके लिए लेट अस इमेजिन दैट वी हैव टू लिक्विड कंपोनेंट्स. I label them as component A and component B. हमारे पास दो लिक्विड कंपोनेंट्स हैं, लिक्विड कंपोनेंट A, लिक्विड कंपोनेंट B. आपने जो बेसिक्स पढ़ा है केमिस्ट्री में, जो बेसिक्स पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, उसके बेसिस पे यू नो वेरी वेल दैट इन एनी मैटर देयर इज ऑलवेज इंटर पार्टिकल फोर्सेस प्रेजेंट. इसका मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट A है और जो कंपोनेंट B है, दे बोथ विल बी हैविंग इंटर पार्टिकल फोर्सेस. इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कह देते हैं उसको. दे हैव सम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट. लेट दैट द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स व्हिच इज
present in component A, I represent it as AA type of intermolecular force. The forces of interaction, intermolecular force भी कह सकता हूँ, forces of interaction भी कह सकता हूँ. तो क्या समझना है? That the forces of interaction in component A, which is AA type, क्या है वो? AA type of interaction. इसी तरह कंपोनेंट बी में क्या है? बीबी टाइप ऑफ इंटरैक्शन. अब मैंने कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों को मिक्स कर दिया. मिक्स किया तो आपको पता है वी आर टॉकिंग अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर. यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे, राइट? यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे तो एक नए टाइप का इंटरैक्शन डेवलप होगा. देयर विल बी अ न्यू इंटरमोलिकुलर फोर्स. क्या होगा वो इंटरमोलिकुलर फोर्स? कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के बीच, राइट? वी विल कॉल इट ए बी टाइप ऑफ इंटरैक्शन, है ना? इफ द ए टाइप ऑफ इंटरैक्शन, बीबी टाइप ऑफ इंटरैक्शन एंड ए बी टाइप ऑफ इंटरैक्शन, दे ऑल आर इक्वल. अगर ये तीनों के तीनों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम हुए, इक्वल हुए, तो कैसा कंडीशन राइज होगा? आइडियल सॉल्यूशन का. If the intermolecular forces of component A, component B and between component A and B, when they are mixed together, all are identical, all are same, then in that case you will have it resulting into ideal solution. That will be forming an ideal solution where enthalpy of mixing and volume of mixing will become 0, right? तो मैं ना आपको इसका कंप्लीट लंबा चौड़ा पैसेज नहीं लिखवा रहा हूं, आपके अंडरस्टैंडिंग, आपको दिमाग में रह जाए वैसा लिखवा रहा हूं, और इसको मैं थोड़ा ऐसे सिंबलाइज कर रहा हूं. इन आइडियल सॉल्यूशन force of interaction in component A, that is FAA, is equal to FDB, which is equal to FAB. ठीक है, चलेगा? आ रहा है समझ में? सिंबॉलिकली ऐसे लिखा है, लेकिन आप इसको पढ़ोगे कैसे? That the interactive forces in component A or the intermolecular forces present in component A is same as intermolecular force present in component B and also same as the intermolecular forces formed between component A and B when they are mixed together. तो intermolecular forces सेम होने की वजह से ना एनर्जी रिलीज होगी ना एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा. एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज 0 and it will result into ideal solution, है ना? इसमें कुछ एग्जाम्पल याद रखना. एग्जाम्पल है नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन. शौर्य, दोनों के दोनों हाइड्रोकार्बन हैं और दोनों लीनियर चेन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है. दे हैव मोस्टली वान डर वाल फोर्सेस. इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होगा इसका? वान डर वाल फोर्स होगा, है ना? तो दोनों में तो सेम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है. अच्छा, कार्बन का नंबर भी ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है, तो इसका वान डर वाल फोर्स भी ऑलमोस्ट सेम मैग्नीट्यूड का होगा. देयर विल बी वेरी स्मॉल डिफरेंस, ऑलमोस्ट सेम है. इसी तरह another example you can give chlorobenzene and bromobenzene. दोनों में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होगा, क्यूमुलेटिव ऑफ डाइपोल डाइपोल और वान डर वाल फोर्स दोनों में होगा. दोनों में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का नेचर सेम है ना? और जब दोनों को मिक्स करोगे देन वी विल हैव अगेन वान डर वाल फोर्सेस बिटवीन दीज टू कंपोनेंट्स, है ना? तो ये सिचुएशन अराइज होगी.
इसलिए इट विल बी फॉर्मिंग आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन एक चीज आपने बचपन से नोटिस की होगी कि आइडियल कंडीशन जो होता है ना बहुत रेयर होता है। आइडियल चीजें मिलती है जल्दी, आइडियल इंसान हो, ऐसा इंसान जो बहुत ही आइडियल हो, आइडियल समझते हो ना, मिलता है? नहीं मिलता है। फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, है ना? आइडियल सिचुएशंस रेयरली एग्जिस्ट। ये तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स कुछ दिए हैं, एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको और भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं which almost behaves as ideal solution, almost, but they are not perfectly ideal solution। ये perfectly, ये भी perfect ideal solution नहीं है। We always have existence of mostly non-ideal solutions। So let us understand what is non-ideal solution now। Non-ideal solution, देखो अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये तो स्पेसिफिक मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन के डेफिनेशन से यू कैन आल्सो टेल मी व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बोलो तो क्या होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन? A solution which do not obeys Raoult's law at entire range of concentration is non-ideal solution। ऐसा सॉल्यूशन जो हर एक कॉन्सेंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा हो, वो क्या हुआ? नॉन आइडियल सॉल्यूशन हुआ, राइट? यहां एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग विल नॉट बी जीरो, राइट? तो मैं ये कंडीशन लिख रहा हूं, डू नॉट ओबे Raoult's law, enthalpy of mixing not equal zero, and also volume of mixing not equal zero। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ये दोनों जो है जीरो नहीं होंगे, ठीक है? क्लियर? होगा। अभी उसी के बेसिस पे तो दो टाइप बताऊंगा। अब ये आइडियल सॉल्यूशन में जो है ना, वी कैन हैव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन क्या करेगा? राउल्ट्स लॉ से डेविएशन शो करेगा। तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेविएशन व्हिच वी हैव टू डिस्कस। इसमें एक है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और इसमें दूसरा है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। चलिए एक मिनट इसका थ्योरी समझ लीजिए, फिर आप नोट कर लीजिएगा, मैं टाइम दे दूंगा। इसका आप थ्योरी समझ लो अच्छे से। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ क्या है और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ क्या है? Suppose you have two liquid components, component A and component B, and when you mix the two components, the intermolecular forces between component A and B is smaller than either of the intermolecular forces of component A or component B। जब आपने कंपोनेंट ए और बी को मिक्स किया तो ए और बी के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपोनेंट ए के इंटरमोलिकुलर फोर्स से
या कंपोनेंट बी के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से वीक है, कम है, तो क्या होगा? जो भी वीक फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन होंगे इसकी वजह से वेपर में कन्वर्जन ज्यादा होगा। वोलेटिलिटी किस फैक्टर पे डिपेंडेंट होती है? वोलेटिलिटी जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंडेंट होती है? नहीं। आपने कभी सोचा कि अगर हम एक वेसल में वाटर और एक वेसल में पेट्रोल साथ में रख दें, आफ्टर सम टाइम वी फाइंड दैट द पेट्रोल वैनिशेस, पेट्रोल पूरा वैनिश हो जाता है, वाटर कंप्लीटली वैनिश नहीं होता। मतलब पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर, पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल है। क्यों पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल है? क्योंकि पेट्रोल में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीक हैं, वाटर में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो स्ट्रांग है। वाटर में स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। पेट्रोल में कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है? वान डर वाल फोर्सेस। हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है दैट इज हैविंग वान डर वाल फोर्सेस। समझ रहे हो इस चीज को? तो यहां पे मैंने क्या कहा कि कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, when both mix together, the resulting intermolecular force between component A and B is smaller than either of force of interaction of component A और force of interaction of component B। तो क्या होगा? वेपर का फॉर्मेशन ज्यादा होगा क्योंकि रिजल्टिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स तो कम हो गया, वेपर ज्यादा बनेगा। वेपर किसके कंपैरिजन में ज्यादा बनेगा? हमने राउल्ट्स लॉ से जो एक्सपेक्ट किया था उसके कंपैरिजन में वेपर का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। सबसे पहले तो हमने वेपर प्रेशर के लिए कौन सा लॉ पढ़ा है? राउल्ट्स लॉ पढ़ा है। मतलब वेपर प्रेशर का जब भी हम अनुमान लगाएंगे, वेपर प्रेशर की जब भी हम प्रिडिक्शन करेंगे, उसमें हम राउल्ट्स लॉ यूज करेंगे। लेकिन ऐसे केसेस में क्या होगा दैट द एक्चुअल वेपर प्रेशर जो एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करेंगे, दैट वेपर प्रेशर वी विल फाइंड इज मोर देन द एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसी को कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्योंकि राउल्ट्स लॉ से जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर था उससे ज्यादा वेपर प्रेशर आया है ना, तो क्या कहेंगे? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। याद रहेगा? तो इसमें मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं। देखो पैसेज तो आपको कंप्लीट अपनी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़नी है। एनसीईआरटी आपके लिए अभी बाइबल, गीता, कुरान जैसा है। उसकी एक एक लकीर, एक एक फुल स्टॉप, कॉमा सब आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको थॉरोली पढ़ना ही है। लेकिन आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहे और आप इसकी एप्लीकेबिलिटी को ज्यादा बेटर वे में समझ पाओ, इसलिए मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से शॉर्ट तरीके में लिख रहा हूँ। उतना लंबा लंबा तो मेरे लिए लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। व्हाट आई एम राइटिंग इन दिस केस, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन ए बी इज स्मॉलर देन फोर्स ऑफ इंटरैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए और फोर्स ऑफ इंटरैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। राइट? स्मॉलर होगा, that will cause enthalpy of mixing greater than 0, also volume of mixing greater than 0। अरे इंटरमोलिकुलर फोर्स जब वीक होगा तो मॉलिक्यूल थोड़ा एक दूसरे से दूर होगा ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल क्लोज आते हैं। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन अगर कम होगा, वीक होगा, तो मॉलिक्यूल थोड़ा दूर जाएगा ना, स्प्रेड होगा ना, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। वॉल्यूम चेंज क्या होगा? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। हाँ, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग का मतलब हुआ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द टाइम वेयर द टू कंपोनेंट्स वर मिक्स्ड। जब दो कंपोनेंट को हमने मिक्स किया उस वक्त एनर्जी चेंज, यहां पे एनर्जी रिलीज हुई, है ना। ठीक है, ये आ रहा है समझ में? तो दैट विल गिव पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये आपको क्या देगा?
पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। इसमें एग्जांपल याद रखना आप, इथेनॉल एंड water. Ethanol and water, they form the solution which shows positive deviation from Raoult's law. Ethanol water solution क्या शो करता है? Positive deviation from Raoult's law. ठीक है, इसका ग्राफ भी प्लॉट करके मैं बताऊंगा। अच्छा, नेगेटिव डेविएशन में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बताओ तो। अगर आप पॉजिटिव डेविएशन समझ सकते हो तो मेरा दावा है नेगेटिव डेविएशन आप यूं बता दोगे। बताइए क्या होगा? ग्रेटर होगा फ्रॉम ईदर ऑफ दिस टू। ग्रेटर होने की वजह से क्या होगा? फोर्स ऑफ इंटरएक्शन अगर स्ट्रांग हो गया तो वो तो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखेगा, वेपर में कन्वर्ट नहीं होने देगा। तो वेपर प्रेशर जो है वो राउल्ट्स लॉ से जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर होगी उसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा, इसीलिए बोला नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव होगा, लेस देन 0, और एंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी लेस देन 0। सो here force of interaction AB is greater than force of interaction AA और force of interaction BB। दूसरा, enthalpy of mixing is smaller than 0, volume of mixing is also smaller than 0, means negative। इसका मतलब क्या हुआ? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग दोनों नेगेटिव होगा, है ना। और इसमें एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एनसीईआरटी का ही एग्जांपल दे देता हूं, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। इसमें जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, देखो मैंने वो स्टेटमेंट नहीं लिखा है क्योंकि यहां से ही पता चल रहा है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन द वन एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। सॉल्यूशन की एक्चुअल वेपर प्रेशर रॉल्ट्स लॉ से एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर जो होगा उससे ज्यादा होती है। आ रहा है समझ में? ये क्लियर है यहां तक? चलिए, अब इसमें एक चीज समझिए कि नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ में ये मैंने जो एग्जांपल लिखा है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, जानबूझ के मैंने आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लिया है। अब इस एनसीईआरटी के एग्जांपल में आप देखिए, आप मुझे बताइए कि एसीटोन में व्हाट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होता है। एसीटोन हैज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्ड कीटोन नहीं बना पाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड इन कीटोन, इट हैज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और क्लोरोफॉर्म आल्सो हैज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ओनली, स्मॉल होता है डाइपोल मोमेंट क्लोरोफॉर्म का रिजल्टिंग होता है। तो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं एसीटोन, ये मैंने ड्रॉ किया एसीटोन, और दूसरी तरफ मैंने ड्रॉ किया क्लोरोफॉर्म। अब क्या हुआ, दोनों में जब अलग अलग थे, या अलग अलग बीकर या अलग अलग टेस्ट ट्यूब में जब थे, दे बोथ हैड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बिटवीन देम, राइट। और जब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया तो मिक्स करने पे दोनों कंपोनेंट्स के बीच क्या फॉर्म हुआ? इंटरमोलिकुलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की मैग्नीट्यूड जो है इट इज ग्रेटर देन डाइपोल डाइपोल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड
डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से तो स्ट्रॉन्गर होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मींस FAB इज ग्रेटर देन FAA, जो कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, या FBB, वो भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ही है। तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन ग्रेटर हुआ तो वेपर में कन्वर्जन कम होगा, वेपर में कन्वर्जन कम हुआ तो ये नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ होगा, और नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ में वी हैव एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग बोथ जीरो। एक छोटी सी चीज और याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में आप देखो इस पूरे पार्ट में कहीं भी एंट्रोपी का डिस्कशन नहीं किया है या गिब्स फ्री एनर्जी का डिस्कशन नहीं किया है। इस पर्टिकुलर पार्ट में, इस स्टैंजा में आप देखो नो वेयर इट इज एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी डिस्कस्ड। लेकिन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें दे आल्सो आस्क अबाउट एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस, राइट। तो आप याद रखिएगा, खास करके एंट्रोपी के लिए याद रखिएगा कि एंट्रोपी यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ऐसे ही याद रखना है। पॉजिटिव डेविएशन में सारी चीजें पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन में इट विल बी नेगेटिव। डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस, 11th स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक्स। रैंडमनेस और डिसऑर्डर का जो मेजर होता है दैट इज एंट्रोपी, डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड एज डेल्टा एस। चलिए इतना पार्ट क्लियर है। अच्छा, किसी के पास बड़ी वाली स्केल है? नहीं है? इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करो, आई विल ड्रॉ द डायग्राम एंड देन वी विल, ओके। नाउ प्लीज लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस ग्राफ। सबसे पहली चीज कि आपको इस ग्राफ को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये ग्राफ जो है इट इज नथिंग, इट इज वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ, जिसमें एक ही ग्राफ में मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दोनों मेंशन कर दिए हैं। आप देख रहे हो कि लेफ्ट टू राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इज इंक्रीजिंग एंड राइट टू लेफ्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इज इंक्रीजिंग, और ये वेपर प्रेशर है। इसमें जो डॉटेड वाली जो दिख रही है ना आपको, डॉटेड वन, वो है द ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और जो रेड कलर से मैंने एकदम सॉलिड वाली दिखाई है वो क्या है? वो है एक्चुअल वेपर प्रेशर विच इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि पॉजिटिव डेविएशन में द कर्व इज गोइंग अपवर्ड, मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया। कर्व गोइंग अपवर्ड का मतलब क्या हुआ? वेपर प्रेशर जो है ज्यादा हो गया, नहीं? और नेगेटिव डेविएशन में आप देखो तो इट इज गोइंग डाउनवर्ड। अब एक्चुअली मेरी डायग्राम जो है ना वो बिना स्केल और इसके जो है थोड़ी सी उतनी परफेक्शन नहीं आती। आप ये ग्राफ एक बार अपने एनसीईआरटी में भी देखिएगा, और जब आप एनसीईआरटी में देखोगे ना तो आप देखोगे कि ये जो कर्व्स दिखाए हैं ना पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के, उन कर्व्स पे यू विल बी एबल टू नोट अप मैक्सिमा एंड द मिनिमा पॉइंट्स स्पेशली ओवर दिस कर्व। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ एक मैक्सिमा पिक दिख रहा है, मतलब ये कर्व जो है ना ऐसा, मतलब एक ना एक पॉइंट जरूर ऐसा आएगा जहां पे यू विल हैव अ मैक्सिमम वेपर प्रेशर। जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इसको आप यहाँ एक्सटेंड करो तो यू विल गेट द मैक्सिमम वेपर प्रेशर ओवर हियर। इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन होगा यहाँ पे, ये इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में द कंपोनेंट्स which are present in this specific composition, they have the same composition in the solution and the same composition in their vapor state. इनका सॉल्यूशन में और वेपर स्टेट दोनों में कंपोजिशन सेम है, मतलब मोल फ्रैक्शन सेम आएगा, एंड सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसको क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हाँ,
composition, mole fraction. So a solution which has same composition in the solution as well as its vapor state is called azeotrope. A solution which has same composition in the solution as well as its vapor state is called azeotrope. ऐसा solution, प्लीज देखो आप लोग तुरंत जो है ना लिखना शुरू कर देते हो, पहले समझ लिया करो. ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंपोजिशन सॉल्यूशन में और वेपर फेज दोनों में सेम हो, मतलब उसके कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में और उसकी वेपर स्टेट में. मतलब हम जो चाई फाइंड करते हैं ना, चाई 1 एंड चाई 2 एज वेल एज y1 एंड y2, दे ऑल विल बी सेम. देन दैट इज नोन एज एजियोट्रॉप. उसको हम क्या कहते हैं? एजियोट्रॉप. एजियोट्रॉप की खासियत होती है, एजियोट्रॉप की खासियत ये है that they boil at the constant temperature. Azeotrope boil at constant temperature. एक मिनट, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, both components of azeotrope boils at constant or same temperature and cannot be separated by fractional distillation. Both components of azeotrope boils at constant temperature and cannot be separated by fractional distillation. Both components of azeotrope boils at constant temperature and cannot be separated by fractional distillation. याद रखिएगा, ठीक है. एजियोट्रॉप क्या होता है? एजियोट्रॉप आर दोज सॉल्यूशंस which have same composition in its solution as well as in vapor phase, and they have both the components boiling at the same temperature. That means there is no difference in the boiling point of the components now, and that is why they cannot be separated by fractional distillation. 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल है कि कंपोनेंट्स के बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है होना चाहिए, बट यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस नहीं है, इसीलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये सेपरेट नहीं होगा. एक छोटी और चीज समझ लो ना, एक मिनट. आप देखिए यहाँ पे कि मैंने क्या कहा था कि इसका जो मैक्सिमा होगा ना, उसका करस्पॉन्डिंग कंपोजिशन वो एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन होगा. क्यों कहा था वो समझिए. आप देख रहे हो कि यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो सबसे मैक्स है, तो वेपर प्रेशर जब सबसे मैक्स होगा वहां जो एजियोट्रॉप फॉर्म होगा, दैट एजियोट्रॉप विल हैव लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट? सनी, हाउ डू यू डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट? Temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to the external pressure. ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए. देखो आपको पता है कि लिक्विड जो है वोलेटाइल होते हैं, दे कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट एंड एवरी लिक्विड हैज सम वेपर प्रेशर.
नहीं, लेकिन वो वेपर प्रेशर क्यों है? क्योंकि जो वेपर्स बने हैं वो वेपर उसके सरफेस पे ही हैं, उनमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो जाके एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाए, है या नहीं? आप जब उसे हीट करना स्टार्ट करते हो तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वेपर्स को एनर्जी मिलती है ना? अब वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी ही जल्दी उन वेपर के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि दे कैन एस्केप फ्रॉम द सिस्टम देयर। नहीं, ज्यादा वेपर प्रेशर मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम। ज्यादा वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट कम। जैसे फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, अल्कोहल एंड वाटर, दोनों में से वेपर प्रेशर किसकी हाई होनी चाहिए? अल्कोहल की वेपर प्रेशर हाई होगी, है ना? इसीलिए ज्यादा वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल ज्यादा इसलिए वेपर प्रेशर हाई है ना? और बॉइलिंग पॉइंट उसकी बहुत कम है, 78 डिग्री सेल्सियस, और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। राइट? आ रहा है समझ में? तो क्योंकि यहाँ बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट होगा तो यहाँ जो आपको एजियोट्रॉप रिजल्टिंग मिलेगा उसको हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या कहते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। लेकिन इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अ सॉल्यूशन which shows large positive deviation हो गया ना? मैक्सिमा जहां पे आ रहा है वो तो सबसे लार्जेस्ट पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो अ सॉल्यूशन विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या फॉर्म करेगा ये? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अ सॉल्यूशन which shows large positive deviation from Raoult's law forms minimum boiling azeotrope। इसके एग्जाम्पल में याद रखिएगा, एग्जाम्पल याद रखो, 95% ethanol in water, 95% of ethanol in water, this solution is minimum boiling azeotrope का एग्जाम्पल। ठीक है, याद रहेगा? चलिए अब देखो, अब आप मुझे ये बताओ कि ऐसा सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो कर रहा है उसको हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कह रहे हैं। तो इस केस में ऐसा सॉल्यूशन विच इज शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ उसको क्या कहना चाहिए? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना? इजी। सो अ सॉल्यूशन which shows large negative deviation from Raoult's law forms maximum boiling azeotrope। इसका एग्जाम्पल है %68 nitric acid and 32% water। This mixture forms maximum boiling azeotrope। ये क्या फॉर्म करता है? इस कंपोजिशन में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। याद रखना, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर हमेशा जरूरी नहीं है कि वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म करेगा ही।
किस कंपोजिशन में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म करेगा? 68% बाय मास, मतलब 68% नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, 32% वाटर होना चाहिए। तो इस कंपोजिशन में दैट विल बी रिजल्टिंग इनटू मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके मल्टीपल चॉइस में भी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट पूछा भी जाता है, व्हाट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एक और चीज, ये ना कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, इसमें देयर इज नो यूज ऑफ रटाफिकेशन मेथड, बिल्कुल काम नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन वीक है कंपोनेंट्स के बीच में तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन जहां मिलेगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। ऐसे रिलेट करके एक दूसरे को आपको इसको कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना होगा, क्योंकि अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि कोई एक ऐसा पैसेज आपको दिया जाए जो आपने कभी अपने एनसीईआरटी में इधर उधर कहीं देखा ही ना हो और उस पर अप्लाइड क्वेश्चंस पूछा जाएगा, डेली लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएगा, तो वहां पे आपको इसकी एप्लीकेशन समझ में आनी चाहिए। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है यहां तक? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप हो गया। सो नाउ स्टोरी टाइम, इसको ऑफ कीजिए। नहीं, स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूँ, ऑनलाइन वालों को सारा कुछ क्यों बता